Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, the business study teacher, and today I am going to explain the remaining techniques of F.W. Taylor. The fifth technique of F.W. Taylor is time study. The technique of time study is conducted to determine or the objectives of time study are the standard time required to perform a job, setting up the standard target for the workers in the organization, determining the number of workers required to perform a job, categorizing the workers in efficient and inefficient categories. Taylor suggested that the time required to perform the job should not be decided by the institution, will and wish of the manager, but time study must be conducted to determine the standard time scientifically. To conduct time study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job with a stopwatch in hand and note down the average time taken by the worker in completion of the job. Taylor suggested to repeat the same observation for 100 times and taken out the average time. This time should be considered the average time for the performing of the job by the workers in the organization. टाइम स्टडी टेक्निक में कंडक्ट किया जाता है द स्टैंडर्ड टाइम, जिसमें कि एक जॉब को परफॉर्म किया जा सके। एक स्टैंडर्ड टारगेट वर्कर्स के लिए कितने वर्कर्स जो हैं काम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं और कितने वर्कर्स की ज़रूरत है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और एफिशिएंट वर्कर कौन है और इनएफिशिएंट वर्कर कौन है। टेलर ने सजेस्ट किया कि एक टाइम का जो निर्धारण है वो किसी भी मैनेजर की विश पे ना हो, किसी भी मैनेजर की डिज़ायर पे ना हो, बल्कि ये साइंटिफिकली हो कि एक काम को करने के लिए कितने टाइम की आवश्यकता है। और टेलर का ये कहना है कि आप इसके लिए वर्कर्स के वर्क को ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो इस टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है, उसको नोट डाउन कीजिए उस टाइमिंग को, और 100 बार रिपीट कीजिए कि इस टाइम में वो वर्क डन हो पा रहा है कि नहीं। और इसके बाद यही हमारा स्टैंडर्ड टाइम है काम को कंप्लीट करने के लिए। और जो वर्कर्स इस टाइम लिमिट में वर्क को सक्सेसफुली डन करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंट वर्कर है, और जो इस काम को सक्सेसफुली डन नहीं कर पाता वो इनएफिशिएंट वर्कर है। आप आसानी से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टाइम स्टडी में हम टाइम को ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस टाइम लिमिट में वर्कर्स अपने वर्क को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। The next technique of F.W. Taylor is motion study. The scientific technique of motion study is conducted to determine the movements of worker when they are performing the job, to differentiate between productive and unproductive movements for cutting down unproductive and wasteful movement, to design suitable equipment and tools to minimize the unproductive movements of workers. To conduct motion study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job and note down all the movement he is doing, how many times he is getting up from his place, how many times he is bending down. After writing all the movements, classify them in productive and unproductive movements and make the strategy to cut down or minimize the unproductive movements. मोशन स्टडी में F.W. टेलर का कहना है कि आप वर्कर्स को काम करते समय उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि कितने बार वो अपनी जगह से मूवमेंट करता है, कितने बार वो झुकता है, बेंड डाउन करता है, और उसको राइट डाउन कीजिए। इसके बाद उसमें से देखिए कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कितने हैं, ऐसे मूवमेंट्स को आप डिक्रीज़ कीजिए जिससे वर्कर्स अपनी एनर्जी को अनप्रोडक्टिव चीज़ों में वेस्ट ना करें और अपना 100% एफर्ट लगाएं ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कारण ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमें सक्सेसफुली अचीव हो पाए। द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ F.W. टेलर इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम insists on paying different rate of wages to efficient and inefficient employees. Extra wages paid to efficient employees will motivate them to remain efficient. Extra wage paid to efficient employees will motivate inefficient employees to come in the categories of
efficient employees. When payment is given according to the number of units produced, automatically the production will be maximized. To adopt differential wage system, Taylor suggested that the company must fix a standard rate of wage for workers producing standard output on their target. The worker who produce more than the target must be paid with a higher rate, and those who are producing less than standard output must be paid with a rate less than standard rate. डिफरेंशियल पिच वेज सिस्टम में एफडब्ल्यू टेलर का कहना है कि जो वर्कर्स जितना वर्क करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट दिया जाए, जिससे कि आसानी से कैटेगराइज हो सके कि कौन एफिशिएंट वर्कर है, कौन इनएफिशिएंट वर्कर है। एफिशिएंट वर्कर को उसके वर्क के अकॉर्डिंग पैसा देंगे तो वो और अधिक काम करने को मोटिवेट होगा। इसके ठीक अपोजिट इनएफिशिएंट वर्कर को अगर आप कम पैसा देंगे तो वो भी अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट होगा और ज़रूर वो एक दिन इनएफिशिएंट से एफिशिएंट एम्प्लॉय बन जाएगा। तो डिफरेंशियल पिच वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जितना वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को उसी के हिसाब से पेमेंट करना है, जिससे कि सारे लोग अपने वर्क को फोकस कर सकें, अपने वर्क को कंसंट्रेट कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से रन कर पाए। The last technique of F.W. Taylor is mental revolution. The objective of mental revolution are change in mental attitude of workers and management towards each other, cooperation between workers and management. Taylor says that generally in every organization, workers feel that management exploits them, overburdens them with excess work and pay them less. On the other hand, manager feels that worker always passing the time, they follow the work in a very slow process, damage the equipments and work carelessly. Both the groups suspect each other. In the technique of mental revolution, Taylor suggested that there is a need to change the attitude of both the groups and work with cooperation and coordination in the organization. मेंटल रिवॉल्यूशन में टेलर का कहना है कि सभी लोगों को मिल के काम करना चाहिए, तभी हमें ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव होगा, काम सिस्टमेटिक वे में होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ग्रुप हैं, वर्कर्स ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप हमेशा सोचता है कि वर्कर काम बहुत ही स्लो करते हैं, बहुत ही केयरलेस तरीके से काम करते हैं, और वर्कर्स हमेशा सोचता है कि मैनेजमेंट उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, पैसे कम दे रहा है। तो F.W. टेलर का कहना है कि देयर इज़ ए नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप्स। ज़रूरत है दोनों लोग अपने एटीट्यूड को भूलें और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करें, मिल के एक ग्रुप के रूप में, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को सिस्टमैटिकली अचीव करेगा। तो इस तरीके से टोटल 8 टेक्निक्स थे F.W. टेलर के, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी techniques of F.W. Taylor. The last topic of this chapter is comparison between Taylor and Fayol. The first comparison is concerned. Taylor's technique and principle are concerned with workers' efficiency, whereas Fayol principle are concerned with management efficiency. Taylor की टेक्निक और उनके प्रिंसिपल वर्कर की एफिशिएंसी को फोकस करते हैं, एंड फ्यूल के प्रिंसिपल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को फोकस करते हैं। सेकेंड लेवल, टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज़ एंड अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर ने अपने स्टडी और अप्रोच को ऑर्गेनाइजेशन के लोएस्ट लेवल से स्टार्ट किया था, और फेयोल ने अपने प्रिंसिपल के अप्रोच को, अपने स्टडी के अप्रोच को हाईएस्ट लेवल से स्टार्ट किया था। एम्फेसिस, टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क को ज़्यादा अप्रोच किया है और फेयोल ने फंक्शन ऑफ मैनेजर्स को ज़्यादा अप्रोच किया है, ज़्यादा वैल्यू दी है। नेक्स्ट फोकस, टेलर लेट फोकसिंग ऑन एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स, इट फोर्स ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। टेलर ने फोकस किया है कि वेस्टफुल मूवमेंट को कम किया जाए, जिससे कि एनर्जी सेव हो और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े। फेयोल फोकस was on development of principle for better management. It focuses on improving overall activity in the organization. फ्यूल का फोकस प्रिंसिपल के डेवलपमेंट पे है, मैनेजमेंट के बेटरमेंट पे है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल अचीवमेंट हो। मेजर कंट्रीब्यूशन,
टेलर का मेजर कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक टेक्निक्स पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे। फ्यूल का मेजर कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। पर्सनालिटी, Taylor developed a personality of scientist and became famous as the father of scientific management. टेलर की पर्सनालिटी साइंटिस्ट की तरह डेवलप हुई और उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया। फ्यूल डेवलप्ड द पर्सनालिटी ऑफ रिसर्चर, ही बिकम फेमस द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। और फ्यूल की पर्सनालिटी एक रिसर्चर के रूप में डेवलप हुई तो उसे फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहा गया। इस तरह आई हैव एक्सप्लेन्ड the comparison between Taylor and Fuel. Okay, thank you very much.